ایک دور تھا جب سلطنت شمس کے پہاڑوں اور صحراؤں میں ایک عظیم بادشاہ شاہ مراد اپنی عقل و عدل سے جانے جاتے تھے۔ ان کی لیاقت خوشحال تھی، مگر ان کا دل ایک دکھ سے خالی نہ تھا، کیونکہ ان کی واحد اولاد شہزادہ کاشف پیدا ہوتے ہی کسی نامعلوم بیماری کے باعث گویائی سے محروم ہو گیا تھا۔ وہ بچپن سے ہی خاموش رہتا، صرف آنکھوں سے بات کرتا، مگر اس کی ماں ملکہ صابرہ نے ہمیشہ اپنی گود میں لے کر وہ محبت دی جو الفاظ سے بڑھ کر تھی۔ جب شہزادہ 9 سال کا ہوا تو محل میں ایک نہایت معصوم اور خوبصورت مگر یتیم لڑکی زینب کو بطور خدمت گزار لایا گیا، جو اپنے ساتھ ایک مٹی کی گڑیا رکھتی تھی جسے وہ اپنی کھوئی ہوئی بہن سمجھتی تھی۔ شہزادہ کاشف اور زینب کے درمیان ایک خاموش دوستی پنپنے لگی۔ زینب کی باتیں اور کاشف کی خاموش مسکراہٹیں ایک دوسرے کے دل کی آواز بن گئیں۔ وقت گزرتا گیا اور یہ دوستی جوانی میں داخل ہو گئی، مگر جب بادشاہ نے اعلان کیا کہ وہ شہزادہ کا رشتہ سلطنت غرور کی شہزادی کے ساتھ طے کر چکے ہیں، تو زینب کا دل ٹوٹ گیا، اور شہزادہ جو ہمیشہ خاموش رہا تھا اس دن پہلی بار چیخنے کی کوشش میں حلق زخمی کر بیٹھا۔ اس بے چینی میں وہ محل چھوڑ کر ایک پرانی درگاہ پر جا پہنچا، جہاں ایک فقیر نے اسے کہا کہ تمہاری زبان بند ہے کیونکہ تمہارا دل ایک سچے درد سے نہیں تڑپا۔ لو یہ دعا، اور جب تم سچی قربانی دو گے تب تمہاری آواز لوٹے گی۔ کاشف لوٹ آیا، مگر سب بدل چکا تھا۔ زینب کو محل سے نکال کر صحرا کے کنارے ایک قافلے کے ساتھ بھیج دیا گیا تھا۔ کاشف نے ہر جگہ اسے ڈھونڈا، جنگلوں میں، بازاروں میں، ویرانوں میں۔ آخرکار ایک پرانے درخت کے نیچے وہ اسے مل گئی، وہی مٹی کی گڑیا ہاتھ میں لیے، کمزور مگر آنکھوں میں وہی روشنی۔ اس نے جب شہزادے کو دیکھا تو مسکرا دی۔ کاشف کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور پہلی بار اس کی آواز نکلی، زینب۔ زینب نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا چہرہ چھوا اور بے ہوش ہو رہی۔ وہ دونوں ایک درویش کے حجرے میں لے جائے گئے جہاں کاشف نے تیمارداری کی۔ زینب کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ کاشف اب بول سکتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو پا چکے تھے، مگر محل سے قاصد آئے کہ بادشاہ شدید بیمار ہیں اور شہزادے کی فوری واپسی چاہتے ہیں۔ کاشف زینب کو لے کر واپس لوٹا، مگر بادشاہ زینب کو قبول نہ کر سکے۔ انہوں نے ایک بار پھر شہزادے کو شادی کے لیے مجبور کیا۔ کاشف نے انکار کیا تو اسے ولی عہد سے عزول کر دیا گیا۔ شہزادہ محل چھوڑ کر زینب کے ساتھ ایک غریب بستی میں بس گیا۔ وہ دونوں عام لوگوں کی طرح زندگی گزارنے لگے۔ شہزادہ آپ قصے سناتا، لوگ اس کی داستانیں سنتے۔ اس کی آواز میں ایک عجیب اثر تھا، وہ درد جو اس نے جھیلا تھا اس کی زبان پر تھا۔ کئی سال بعد سلطنت میں قحط آیا، عوام بے حال ہو گئے، بادشاہ کی حالت کمزور ہو گئی۔ تب ایک دن کاشف کو محل بلایا گیا کہ رعایا کا بھروسہ صرف تم پر ہے۔ کاشف نے ایک شرط رکھی کہ اگر وہ زینب کو اپنی ملکہ بنائیں گے تو وہ لوٹ آئے گا۔ بادشاہ نے کمزوری میں حامی بھر لی۔ کاشف نے تمام خزانے غریبوں میں بانٹے، کنویں کھدوائے، کھیتوں کو آبپاشی دی۔ قحط ختم ہو گیا۔ لوگ اس کو بولتا ولی کہنے لگے، کیونکہ جو شخص کبھی خاموش تھا اب اس کی آواز میں خدا کی مہر لگ چکی تھی۔ آخرکار بادشاہ کا انتقال ہوا۔ کاشف بادشاہ بنا، مگر اس نے تخت محل میں نہ بیٹھا، بلکہ ایک درخت کے نیچے دربار قائم کیا، جہاں زینب ہمیشہ اس کے ساتھ بیٹھتی۔ اس درخت کے نیچے جہاں ان کی کہانی شروع ہوئی تھی۔ زینب اب بھی وہ مٹی کی گڑیا سنبھال کر رکھتی جو بچپن کی معصومیت کی نشانی تھی۔ سالوں بعد جب کاشف کا انتقال کا وقت آیا تو اس نے وصیت کی کہ اسے اسی درخت کے نیچے دفن کیا جائے جہاں وہ پہلی بار زینب سے ملا تھا۔ زینب نے اس کی وصیت پر عمل کیا اور روز شام اس کی قبر کے پاس بیٹھ کر اس کی کہانی بچوں کو سناتی، وہ کہانی جو محبت، صبر، خاموشی، قربانی اور سچی آواز کی تھی۔ وقت گزرا اور وہ درخت ایک یادگار بن گیا جہاں ہر سال لوگ آ کر اپنی کہانی سناتے، دعا مانگتے، کیونکہ وہ مانتے تھے کہ جہاں سچی محبت ہو وہاں زبان کی ضرورت نہیں رہتی، آنکھوں کی خاموشی ہی سب کچھ کہہ جاتی ہے۔
बहुत जमाने पहले परियों की एक हसीन सल्तनत में एक निहायत जस्तजू पसंद और निडर परी रहती थी जिसका नाम जेना था। जेना को बचपन ही से एक आदत थी कि वो हर चीज को जानना और परखना चाहती थी। वो आम परियों की तरह सिर्फ गीत गाने या फूलों में खेलने में खुश नहीं रहती थी, बल्कि उसका दिल हमेशा नई चीजों को तलाश करने पर मायल रहता था। उसके कमरे में पुरानी जादुई किताबें, कहानियाँ और दुनिया भर की जादुई मखलूकात के किस्से जमा थे। खास तौर पर उसे यूनिकॉर्न्स की कहानियों में सबसे ज्यादा दिलचस्पी थी। उसके ख्वाबों में भी अक्सर एक सफेद रोशन सींग वाला यूनिकॉर्न आता जो उसे दूर दराज की वादियों में बुला रहा होता। पूरी सल्तनत में लोग जेना के इस जस्तजू और बहादुरी को पसंद करते थे। वो जानते थे कि जेना मुख्तलिफ है और यही फर्क उसकी असल ताकत था। एक दिन जेना एक जादुई झरने के पास नहाने गई। ये जगह उसकी पसंदीदा थी क्योंकि वहाँ की हवा में खुशबू और पानी में रोशनी की झलकियाँ नाचती थी। मगर उस दिन कुछ खास था। जैसे ही वो झरने के करीब पहुंची, उसने एक तरफ घने दरख्तों के पीछे से एक चमकदार दरवाजा देखा। ये दरवाजा किसी जादुई पर्दे की तरह लग रहा था जो हल्की हवा के साथ लरज रहा था। जेना की आंखें हैरत से बड़ी हो गई और आहिस्ता आहिस्ता उस दरवाजे के अंदर दाखिल हुई। अंदर कदम रखते ही उसने खुद को एक ऐसी वादी में पाया जो उसने कभी देखी ही न थी। आसमान गुलाबी और सुनहरी रोशनी में नहा रहा था। फूलों के पत्ते खुद ब खुद गुनगुना रहे थे और दरख्तों पर लगे फल ऐसे लग रहे थे जैसे कीमती मोती हों। ये मंजर देखकर जेना का दिल धड़कने लगा। वो सोचने लगी, क्या ये वही जादुई वादी है जिसके बारे में पुरानी किताबों में लिखा है? वादी में चलते चलते अचानक उसकी नजर एक अजीब मंजर पर पड़ी। एक बड़े जंगल के बीच में एक खूबसूरत यूनिकॉर्न जाली के अंदर कैद था। उसका जिस्म बर्फ की तरह सफेद, आंखें नीले समुंदर जैसी गहरी और उसका सींग ऐसे चमक रहा था जैसे उस पर पूरी कायनात की रोशनी कैद हो। जेना के दिल तड़प उठा। वो तेजी से आगे बढ़ी और अपनी जादुई ताकत से जाली को तोड़ दिया। जाली टूटते ही यूनिकॉर्न ने एक जोरदार सांस लिया और खड़ा हो गया। उसकी आंखों में शुक्रगुजारी और आजादी की चमक थी। यूनिकॉर्न ने बस अपनी निगाहों से जेना का शुक्रिया अदा किया और फिर जंगल की गहराई में गायब हो गया। जेना जब वापस घर पहुंची तो उसके दिल में वो यूनिकॉर्न मुसलसल घूम रहा था। उसने अपनी पुरानी जादुई किताबें खोलकर तलाश शुरू की। कई घंटे बाद उसे एक पुरस्कार बाब मिला। उसमें लिखा था, ये यूनिकॉर्न दरअसल एक शहजादा है जिसे एक जालिम जादूगरनी ने कई बरसों पहले शराब पिलाई और जादू के जरिए एक मखलूक में बदल दिया। वो जब तक जादूगरनी जिंदा है अपनी असली सूरत में वापस नहीं आ सकता। ये पढ़कर जेना हैरत और दुख से भर गई। वो सोचने लगी कि इतने सालों से ये शहजादा एक जानवर की शक्ल में कैद है और कोई इसकी हकीकत नहीं जानता। चंद दिन बाद जेना दोबारा उसी वादी में गई। वो घंटों तलाश करती रही और आखिरकार उसे वही यूनिकॉर्न दोबारा नजर आया। इस बार वो डरी नहीं बल्कि आगे बढ़कर उसके करीब बैठ गई। यूनिकॉर्न की आंखों में एक अजीब सा सुकून और कुर्बत का एहसास था। जेना ने आहिस्ता से कहा, मैं तुम्हें तुम्हारी असल सूरत में वापस लाऊंगी, ये मेरा वादा है। यूनिकॉर्न ने जैसे सर हिलाया और उसके करीब खड़ा हो गया। इस लम्हे जेना के दिल में एक अनोखी मोहब्बत ने जन्म लिया, ऐसी मोहब्बत जिसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल था। जेना ने किताबों में मजीद खोज लगाई तो उसे मालूम हुआ कि जादूगरनी को शिकस्त देना आसान नहीं है। उसके पास अंधेरों की फौज थी। वो आग और तूफानों को काबू कर सकती थी, मगर अगर कोई दिल से सच्चा और बहादुर हो तो उसकी रोशनी उसके काले जादू को तोड़ सकती है। उसने अपनी जादुई कमान, रोशनी वाले तीर और सितारों का हार लिया और सफर पर निकल पड़ी। रास्ते में उसे बुलंद पहाड़ मिले जहाँ बर्फानी तूफान ने उसे रोकने की कोशिश की। एक झील के किनारे काला ड्रैगन खड़ा था, मगर जेना ने अपनी चमकदार रोशनी से उसे पीछे हटा दिया। कई दिनों की भूख, प्यास और थकान के बावजूद वो नहीं रुकी। आखिरकार वो एक स्याह पहाड़ के दामन में पहुंची जहाँ जादूगरनी का कला था। कले की दीवारें धुएं और साये से बनी थी और ऊपर आसमान पर काले बादल गरज रहे थे। जेना ने हिम्मत बांधी और कले के अंदर दाखिल हुई। वहाँ एक हॉल में जादूगरनी उसका इंतजार कर रही थी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और हाथों में बिजली की लपटें थीं। तू वही है जिसने मेरे यूनिकॉर्न को आजाद किया? जादूगरनी गुर्राई। जेना ने मजबूत लहजे में कहा, वो तुम्हारा यूनिकॉर्न नहीं, वो एक शहजादा है और मैं उसे आजाद कराऊंगी। फिर एक बड़ी लड़ाई शुरू हुई। जादूगरनी ने आग के शोले बरसाए, अंधेरों की जंजीरें फेंकी और जमीन को लरजा दिया।
मगर जेना ने अपने रोशन तीर से एक एक वार को तोड़ा। उसके सितारों वाले हार ने रोशनी फैलाई जो किले की दीवारों को कमजोर करने लगी। आखिरकार जब जादूगरनी ने एक आखिरी काला तूफान बनाया तो जेना ने अपनी पूरी ताकत से एक रोशन तीर चलाया। तीर सीधा जादूगरनी के दिल में लगा और वो चीख के साथ राख में बदल गई। जैसे ही जादूगरनी गिरी, कला टूटने लगा और वादी में रोशनी फैल गई। उसी लम्हे यूनिकॉर्न के जिस्म से एक सुनहरी रोशनी फूटी और वो आहिस्ता आहिस्ता एक खूबसूरत इंसानी शहजादे में बदल गया। शहजादा लंबा, वजीह और रोशनी आंखों वाला था। वो घुटनों के बल बैठकर जेना का शुक्रिया अदा करने लगा। तुमने मुझे वो दिया है जो मैंने बरसों पहले खो दिया था, मेरी जिंदगी, मेरी आजादी। वक्त गुजरता गया और जेना और शहजादा एक दूसरे के करीब आते गए। दोनों के दिलों में मोहब्बत खिलने लगी। शहजादा अक्सर कहता, तुम सिर्फ मेरी निजात दहिंदा नहीं बल्कि मेरी जिंदगी की सबसे कीमती रोशनी हो। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि वो शादी करेंगे। शादी जादुई वादी में हुई जहाँ फूलों ने खुद ब खुद गुलाब के बारिश की, परिंदों ने नगमे गाए और पूरी वादी रोशनी में नहा गई। परियों की सल्तनत और शहजादे की रियासत दोनों के लोग जमा हुए और एक अजीम जश्न मनाया। शादी के बाद जेना और शहजादा वादी में रहने लगे। वो अपनी मोहब्बत और बहादुरी से सल्तनतों को जोड़ने लगे। वादी अब हमेशा रोशनी और खुशबू से भरी रहती थी क्योंकि वहाँ सिर्फ जादू ही नहीं बल्कि सच्ची मोहब्बत का पहरा था। यूं जेना ने साबित किया कि जस्तजू, हिम्मत और मोहब्बत मिलकर किसी भी अंधेरे को शिकस्त दे सकते हैं और यूनिकॉर्न की कहानी हमेशा के लिए ऐसी मोहब्बत की अलामत बन गई जिसे जमाने कभी न मिटा सके। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, every shot from the top. We're gonna be two hearts running wild. एक जमाने की बात है कि कीव के शहजादे व्लादिमीर ने अपनी बेटी लुदमीला और नाइट रुस्लान की शादी की खुशी में एक अजीमुशान दावत का एहतिमाम किया। इस अजीम मौके पर सल्तनत भर से शाही मेहमान, बहादुर नाइट्स, शहजादियां और सरदार जमा हुए थे। रंग बिरंगे शाही लिबासों में दरबारी रक्स कर रहे थे, कीमती फानूस चमक रहे थे। साजंदे अपनी धुनों से माहौल को मजीद रोमानवी बना रहे थे। हर तरफ खुशी, मोहब्बत और शानदार जश्न का समा था। इस मौके पर 3 हसद करने वाले रकीब भी मौजूद थे, रोगदे, फालाफ और रातमीर। जश्न देर तक जारी रहा और जब महफिल खत्म हुई तो रुस्लान अपनी दुल्हन के साथ शादी के कमरे की तरफ रवाना हुआ। अचानक आसमान पर एक चमकदार रोशनी फैली और जमीन जोर से हिल गई। धुंध सी छा गई। एक पुरअसरार आवाज गूंजी। रुस्लान ने मुड़कर देखा, लुदमीला गायब हो चुकी थी, जैसे कभी थी ही नहीं। लुदमीला के गायब होने की खबर सुनते ही शहजादा व्लादिमीर गुस्से और फिक्र से बेहाल हो गया। उसने फौरन शादी मंसूख कर दी और ऐलान किया कि जो भी लुदमीला को तलाश करके वापस लाएगा वही उसका हाथ पाएगा। रुस्लान, रोगदे, फॉरलॉफ और रातमीर लुदमीला की तलाश में निकल पड़े। इब्तदा में वो एक साथ सफर करते रहे, मगर जल्द ही उनके रास्ते अलग हो गए। रोगदे, मैं उगवा करने वाले को सबक सिखाऊंगा। उसे लगा कि उसने मुजरिम को देख लिया है। घोड़ा दौड़ाया, तलवार संभाली और सामने वाले पर हमला किया। जब करीब पहुंचा तो मालूम हुआ वो तो फारलाफ है। रोगदे बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। फारलाफ, जो कि सबसे बुज़दिल नाइट था, खाई में पड़ा खुशी मना रहा था कि उसे एक बदसूरत और शरीर जादूगरनी नायना मिली। लुदमीला को किसी और से आजाद होने दो। जब वो वापस आ रहे हो तो मौका पाकर उसे अपने साथ ले जाना। उधर रातमीर जुनूब की तरफ जा रहा था। एक शाम उसे एक किला नजर आया जिसमें हसीन और जमील दोशीज़ाएं रहती थी। वो वहीं रुक गया और फिर कभी नजर न आया।
रुस्लान लुदमीला की तलाश में सबसे ज्यादा आगे बढ़ चुका था। उसे एक गार मिली जहां एक बूढ़ा जादूगर मिला। मैं फिनलैंड से हूँ और जवानी में एक हसाइना के इश्क में गिरफ्तार होकर जादूगर बना था। बरसों की मेहनत के बाद वो लड़की मिली, मगर तब तक वो एक बदजात, बदसूरत और कूड़ी कमर वाली बुढ़िया बन चुकी थी, और वही बदसूरत बुढ़िया नायना थी। लुदमीला को शरीर जादूगर चरनुमोर ने अगवा किया है, मगर आखिरकार सब कुछ बेहतर हो जाएगा। रुस्लान ने सफर जारी रखा। रास्ते में रोक दे मिला। दोनों ने जबरदस्त लड़ाई की। आखिरकार रुस्लान ने उसे पीछे धकेलकर दरिया की तरफ रवाना किया। अगले ही मोड़ पर एक देओ जितना सर रास्ते में था, वो कहका मारकर हंसता और जोर से फूंक मारता, जिससे रुस्लान और उसका घोड़ा हुआ में हिलने लगते। तू मुझसे गुजर नहीं सकता। रुस्लान ने नीजा जबान की तरफ बढ़ाया। सर कमजोर हो गया। फिर उसे एक जोरदार धक्का दिया। रुस्लान आखिरी बार वार करने वाला था कि सर ने हार मान ली। मैं वफादारी का वादा करता हूँ। चरनोमोर मेरा भाई है। हम दोनों के दरमियान एक जादुई तलवार पर तनाजे हुआ और चरनोमोर ने मेरा सर अलग कर दिया। चरनोमोर की सारी ताकत उसकी दाढ़ी में है। दाढ़ी काट दी जाए तो ताकत भी खत्म हो जाएगी। रुस्लान ने उसे माफ किया और आगे बढ़ गया। लुदमीला को चरनोमोर कैद करके अपने किले में ले गया था। वो उसे आरामदेह जिंदगी देना चाहता था, मगर लुदमीला का दिल रुस्लान के बगैर उदास था। बाग में परियों जैसे परिंदे और जादुई दरख्त जरूर थे, मगर खुशी ना थी। एक बार चरनोमोर ने मोहब्बत भरी पेशकदमी की। मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। लुदमीला खामोशी से उसकी पेशकदमी को ठुकरा देती है। मैं कभी तुम्हारी नहीं बन सकती। और उसकी जादुई टोपी छीन ली, जिसे उल्टा पहनने से वो गायब हो जाती थी। अब वो मुसलसल गायब रहती थी ताकि चरनोमोर उसे ढूंढ ना सके। चरनोमोर ने चालाकी से रुस्लान की शक्ल इख्तियार की। लुदमीला धोखा खा गई, टोपी उतारी और उसके सामने आ गई, मगर हकीकत जानकर बेहोश हो गई। तब ही असली रुस्लान वहाँ पहुँचा और एक जबरदस्त मुकाबला शुरू हुआ। चरनोमोर ने लुदमीला पर दोबारा टोपी डाल दी ताकि वो नजर न आए। 2 दिन तक लंबा तकरार जारी रहा, यहाँ तक कि रुस्लान ने जादुई तलवार से चरनोमोर की दाढ़ी काट दी। उस लम्हे चरनोमोर की तमाम ताकत खत्म हो गई और वो बेबस होकर जमीन पर गिर गया। अब रुस्लान ने बेकरार होकर लुदमीला को तलाश करना शुरू किया। एक इत्तेफाकी वार में उसकी तलवार ने जादुई टोपी हटा दी और लुदमीला जाहिर हो गई, अब भी बेहोश। फिर जादूगर की आवाज सुनाई दी। जब तुम कीव पहुंचोगे तब वो होश में आएगी। वापसी पर उनकी मुलाकात जख्मी सर से हुई, जो मरने के करीब था। जब उसने देखा कि रुस्लान ने चरनोमोर को शिकस्त दी, तो उसने सुकून से आखिरी सांस ली। कीव के करीब आकर वो सब खीमाजन हुए। रात को जब सब सोए हुए थे, फारलाफ और नायना ने साजिश की। फारलाफ ने रुस्लान पर हमला किया और उसे वहीं छोड़ दिया। फिर वो लुदमीला को साथ लेकर कीव पहुंचा, जहां उसे हीरो समझा गया, मगर लुदमीला अभी तक बेहोश थी। दुश्मन कबाइल ने हमला किया। एक सवार दूर से आता दिखाई दिया, वो रुस्लान था। फिन जादूगर ने उसे मौत के मुंह से बचाकर जिंदगी और मौत के खास पानी से जिंदा कर दिया था। रुस्लान ने तन तन्हा दुश्मनों को पसपा कर दिया और शहर को बचा लिया। अब वो अपनी महबूबा के पास पहुंचा। फिन जादूगर की दी हुई जादुई अंगूठी से उसने लुदमीला को जगाने की कोशिश की। कुछ लम्हे गुजरे, पुलके लर्जी। लुदमीला जाग गई और उसने लंबी रात पर हैरत से नजर दौड़ाई। अचानक उसे अपना नाइट नजर आया। उसने रुस्लान की तरफ देखा और अपने हीरो को गले लगा लिया। रुस्लान और लुदमीला फिर कभी जुदा न हुए और हमेशा खुश खुरम रहे। अगर इस कहानी ने आपको एक लम्हे के लिए भी खामोश कर दिया हो, तो एक सब्सक्राइब हमारी खामोश मेहनत की सबसे खूबसूरत आवाज होगा। और अगर दिल ने हल्की सी मुस्कुराहट दी हो, तो लाइक भी करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सा लम्हा दिल से लगा।